Hello, good evening, students. Today I am going to start a new chapter, chapter 4 Heat in Science. At first, we will know that what is heat. Heat क्या है? What is the heat? And we see in our daily life many things. Some things like tea, coffee, and gas stoves, burning gas stove. These are very hot. Something looks they look hot and very many other things look like cool, like cold drink, like ice cubes. They looks like cool things. And last chapter, fibers and fabrics. In last chapter, fibers and fabrics, you learned that the cloths, woolen cloths and many other fabrics, cotton cloths, woolen cloths, nylon, rayon, other fabrics. And mainly we talk about the cotton cloths and the woolen cloths. Woolen cloths are made from animal fibers. You also know that animals fiber, and the cotton cloths are made from plant fibers. And we wear woolen cloths during winters when it is cold outside. जब आउटसाइड में बहुत कोल्ड होता है, जो वेदर होता है बहुत ही कोल्ड होता है, वी वियर वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर सीजन. वुलन क्लॉथ्स कीप अस वार्म. वुलन क्लॉथ्स जो होते हैं कीप वार्म रखते हैं हमारी बॉडी को. एंड इन समर सीजन वी लाइक टू वियर लाइट कलर्ड एंड कॉटन क्लॉथ्स बिकॉज दे कीप अस कूल. वो हमें कूल रखते हैं. एंड दे मेक अस कंफर्टेबल. हमें कंफर्टेबल भी फील कराते हैं. दे फील अस कंफर्टेबल. हमें कंफर्टेबल भी फील कराते हैं. एंड you might have wondered why particular types of clothes are suitable for particular seasons. So आप ये भी बहुत ही जानने की you have curiosity to know about that why particular types of clothes are suitable for particular season. Why cotton cloths why cotton cloths suitable for summer season, and why woolen cloths suitable for winter season. So in winter you feel cold inside the house. हाउस के अंदर आप फील करते हो बहुत ही कोल्ड. इफ़ यू कम आउट इन द सन यू फील वार्म. आप वार्म फील करते हो. इन समर यू फील हॉट. समर में आप हॉट फील करते हो. एंड यू फील कूल इन साइड द हाउस एंड इन द क्लॉथ्स ऑफ कॉटन एंड इन द fan, AC. And we like to eat cold things like cold drink या cold objects कोई भी. So we shall try to seek answers to some these questions. इन questions के आंसर हम ट्राई करेंगे उनको फाइंड आउट करने के लिए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हॉट एंड कोल्ड तो हम सब जानते हैं. वी ऑल नो दैट इन आवर डेली लाइफ एंड डे टू डे लाइफ we come across a number of objects. Some of them are hot and some of them are cold. So here is a table given in the chapter hot and cold object: ice cream, spoon in a teacup, fruit juice, handle of a frying pan. So you own self find out the these temperature of these things, cold or hot. So we know that ice cream is cold and spoon in a teacup warm, hot.
and we all know that some of them are cold, tea is hot and ice is cold. So mark these objects as hot or cold, and listen carefully. Do not touch any object which are too hot. Be careful while handling candle flame or a stove. Um, or you may ask the to your elders. We see that the some objects are cold while some are hot. You also know that some objects are hotter than other while some are colder than other. बहुत सारी थिंग्स ऐसी होती हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, एंड बहुत बहुत सारी ऑब्जेक्ट ऐसे होते हैं जो दूसरे ऑब्जेक्ट से कोल्ड होते हैं। एज लाइक आप अगर टी है, टी को आपने तुरंत का तुरंत स्टोव से निकाल कर रखा है तो दैट इज़ टू हॉट, एंड आफ्टर सम टाइम दैट इज़ वार्म। उसका टेम्परेचर जो था, जो उसका हीटिंग टेम्परेचर था, दैट विल इंक्रीज डिक्रीज़, बहुत ही वो घट गया, और इससे क्या हो गया, वो बहुत ही ज़्यादा उसका टेम्परेचर नहीं रहा और वो टू हॉट नहीं रही, बहुत ज़्यादा हॉट नहीं रही और वो वार्म हो गई। ऐसे ही अगर हम आइस क्यूब लेते हैं, कोल्ड ड्रिंक अगर हमने जस्ट फ्रिज से निकाली है तो वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड होगी, बहुत ही ज़्यादा कोल्ड होगी, बट उसे हम जैसे ही नॉर्मल टेम्परेचर में लेकर आते हैं और उसका जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल हो जाता है और वो बहुत ही ज़्यादा चिल्ड नहीं रहती है। सो हाउ do we decide which object is hotter than the other, and how do we decide which object is colder than the other? We often do it by touching the object. अक्सर क्या करते हैं, we do it by touching our hands. जो भी ऑब्जेक्ट होते हैं हम उसे हैंड के थ्रू टच करके उसे फील करते हैं, दैट इज़ हॉट और दैट इज़ कोल्ड। बट इज़ आवर सेंस ऑफ टच रिलायबल? अब जो हमने जैसे टच किया है, क्या वो हमारे लिए कंफर्टेबल है, क्या वो हमारे लिए कॉजी है? सो वी हैव वी डू नॉट हैव टू टच डायरेक्टली, वी कैन हेल्प आर एल्डर्स, हमारे अपने एल्डर से हेल्प ले सकते हैं और उसे हम डायरेक्टली टच नहीं कर सकते हैं। उस जैसे एक एक्टिविटी यहाँ पर दी गई है, टेक 3 लार्ज मग्स, लेबल देम एज ABC, पुट कोल्ड वाटर इन A, हॉट वाटर इन मग B एंड मिक्स सम कोल्ड वाटर इन मग C। मग C में क्या करना है आपको कुछ, और आपका जो भी C कप है उसमें क्या है, हॉट कोल्ड और हॉट दोनों को मिक्स करके आपको करना है। नाउ डिप योर लेफ्ट हैंड इन मग A एंड द राइट हैंड इन मग B। मग A में लेफ्ट हैंड डिप कीजिए एंड मग B में राइट हैंड डिप कीजिए। आफ्टर कीपिंग द हैंड्स इन द 2 मग्स फॉर 2-3 मिनट्स, पुट बोथ हैंड सिमिल्टेनियसली इन मग C। और आप कुछ समय अंतराल बाद मग C में अपना हैंड पुट करें। डू बोथ हैंड्स गेट द सेम फीलिंग? तो जो दोनों हैंड्स थे आपके उसमें क्या सेम फीलिंग आएगी आपको? तो कैन नॉट ऑलवेज रिलाई ऑन आवर सेंस ऑफ टच टू डिसाइड वेदर एन ऑब्जेक्ट इज़ हॉट और कोल्ड। समटाइम्स इट मे डिसीव अस। समटाइम्स कभी कभी क्या होता है, ये हमको क्या कर देता है, बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज कर देता है, एंड वी डू नॉट गेट द राइट टेम्परेचर ऑफ द थिंग्स। देन हाउ डू वी फाइंड द हाउ हॉट एन ऑब्जेक्ट रियली इज़? कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी जो ऑब्जेक्ट है वो उसका एक्चुअली टेम्परेचर क्या है, एक्चुअली कितनी हॉट है एंड एक्चुअली कितना कोल्ड है? सो आर रिलायबल मेजर ऑफ द हॉटनेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज़ द टेम्परेचर, दैट इज़ कॉल्ड द टेम्परेचर। टेम्परेचर इज मेजर्ड बाय डिवाइस कॉल्ड थर्मामीटर। टेम्परेचर एक डिवाइस है दैट इज़ कॉल्ड थर्मामीटर। थर्मामीटर के थ्रू टेम्परेचर को वी कैन बी मेजर, उसे मेज़र कर सकते हैं टेम्परेचर को थर्मामीटर की हेल्प से। सो हाउ कैन वी यूज़ थर्मामीटर? थर्मामीटर को कैसे हम यूज़ कर सकते हैं? सो हाउ कैन वी मेज़र द टेम्परेचर? हैव यू सीन अ थर्मामीटर?
थर्मामीटर आप सब ने देखा होगा. सो रिकॉल दैट व्हेन यू आर समवन एल्स इन योर फैमिली हैड फीवर. जब आपकी फैमिली में या आपको यू हैव फीवर, द टेम्परेचर वॉज मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर. तो जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर होता है दैट कैन बी मेजर्ड बाय अ थर्मामीटर, एंड द थर्मामीटर दैट मेजर्स आर बॉडी टेम्परेचर इज कॉल्ड क्लिनिकल थर्मामीटर. और इस बॉडी के जो टेम्परेचर है उसे क्लिनिकल थर्मामीटर बोलते हैं. एंड होल्ड द थर्मामीटर इन योर हैंड. अपने जो थर्मामीटर है उसे अपने हैंड में आप एंड एग्जामिन इट केयरफुली. अपने हैंड में उसे रखिए एंड एग्जामिन इट केयरफुली, और बहुत ही केयरफुली इसे एग्जामिन करें. इसे ऑब्जर्व करें. इफ़ वी डू नॉट हैव अ थर्मामीटर, आपके पास थर्मामीटर नहीं है, रिक्वेस्ट अ फ्रेंड टू शेयर इट विद यू. अ क्लिनिकल थर्मामीटर लुक्स लाइक द वन शोन इन फिगर. आप फिगर में देख सकते हो दैट इज़ अ क्लिनिकल थर्मामीटर. क्लिनिकल थर्मामीटर कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो यूनिफॉर्म ग्लास ट्यूब. आप you are seeing in the figure, clinical thermometer consists of a long narrow uniform glass tube. It has a bulb at one end. इसके एक एंड में एक बल्ब लाइक स्ट्रक्चर होता है. एंड दिस बल्ब कंटेन मर्करी. मर्करी इस बल्ब में होता है. आउटसाइड द बल्ब अ स्मॉल शाइनिंग थ्रेड ऑफ मर्करी कैन बी सीन. जब आप बल्ब को आउटसाइड से देखते हो, आप बाहर की ओर से देखते हो, तो एक बिल्कुल थ्रेड लाइक ये दिखता है. इफ़ यू डो नॉट सी द मर्करी थ्रेड, अगर आपको मर्करी थ्रेड नहीं दिख रहा, नहीं देख पा रहे हो, रोटेट द थर्मामीटर अ बिट टिल यू सी. आप उस थर्मामीटर को रोटेट करें. यू विल ऑल्सो फाइंड अ स्केल ऑन द थर्मामीटर. आपको थर्मामीटर में वो स्केल भी दिखेगा. द स्केल वी यूज़ इज़ सेल्सियस स्केल इंडिकेटेड बाय डिग्री सेल्सियस. डिग्री सेल्सियस में उस जो भी मेजर्ड करते हैं उसे डिग्री सेल्सियस में इंडिकेट किया जाता है. सो क्लिनिकल थर्मामीटर रीड्स टेम्परेचर फ्रॉम 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में टेम्परेचर को रीड करता है. सो दैट इज़ द शॉर्टली डिस्क्रिप्शंस ऑफ द मेजरिंग टेम्परेचर एंड अबाउट थर्मामीटर. थर्मामीटर इज़ अ डिवाइस मेजरिंग टेम्परेचर. टेम्परेचर को मेज़र करने के लिए जो डिवाइस यूज़ कर रहे हैं उसे थर्मामीटर बोलते हैं. एंड दैट यू रीड द एक्टिविटी 4.2 केयरफुली रीडिंग अ थर्मामीटर. थर्मामीटर को कैसे रीड करते हैं, दिस एक्टिविटी इज़ शोन दैट. सो वॉच इट केयरफुली एंड राइट डाउन द गिवन क्वेश्चंस आंसर इन रफ नोटबुक.